نے دولت کی لالچ دی، کسی نے زیور کی لالچ دی، کسی نے مال کی لالچ دی، بلکہ کبھی کبھی کسی بدبخت نے شادی کی لالچ دی۔ کیا اس غریب کے ساتھ مصیبتیں اٹھا رہی ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اور کیا اس جو ہے وہ بدصورت کے ساتھ رہ رہی ہے؟ دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ہمارے معاشرے کا نظام ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے بات بات پر عورتوں کو طلاق دیتے ہیں۔ نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو طلاق، بیوی بغیر بتائے گھر والے کے یا اپنی مائکے چلے گئی تو طلاق۔ یہ طلاق کی نحوست، آپس میں میل جول کچھ بھی نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو ہے تمام چیزوں سے روکا ہے، لیکن آج ہم لوگ اسی کام کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جائز چیزوں میں جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ جائز تو ہے طلاق دینا، لیکن سب سے زیادہ اگر ہمارے رب کو ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ دو چار منٹ کا ویڈیو اس کو دیکھیں، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی بلا کا 10 منٹ کا ویڈیو کا بیان ہے، اس کو دیکھیں۔ جو طلاق کے نحوست کے اوپر جو مرد عورت کو چھوڑتے ہیں، عورتیں مردوں کو دنیاوی بہانہ کے نام پر، دنیا کے نام پر چھوڑتے ہیں، ان کو سنیں اور اپنے اندر کے سدھار پیدا کریں۔ اپنے گھر کے مرد اور عورت کے اندر اس سے سدھار کو پیدا کریں اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بیان ریئیکشن چینل۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستو احباب کو ضرور سے کہتا ہوں صبر پیدا کرو۔ اور ایک اہم بات بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے شہر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن اب سیریلوں میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے پھرتا ہے، ویسے ہی ایک عورت کئی مردوں سے بھی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز۔ کسی نے دولت کی لالچ دی، کسی نے زیور کی لالچ دی، کسی نے مال کی لالچ دی، بلکہ کبھی کبھی کسی بدبخت نے شادی کی لالچ دی۔ کیا اس غریب کے ساتھ مصیبتیں اٹھا رہی ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اور کیا اس جو ہے وہ بدصورت کے ساتھ رہ رہی ہے؟ دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ یاد رکھنا یہ تقدیر کے فیصلے، قدرت کے فیصلے۔ اگر آپ کی قسمت میں بظاہر کوئی بدصورت، حالانکہ کوئی انسان کوئی بدصورت نہیں ہوتا، جس کے لیے قرآن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، وہ بدصورت نہیں ہوتا۔ لیکن عرف میں اگر کوئی کالی رنگ کا ہے، چلیے اگر کسی کی ناک ہی چھوٹی ہے یا آپ اس کا چہرہ پسند نہیں کرتی، پہلے تو آپ کو حق تھا شادی سے پہلے انکار کا، لیکن اب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میری بہنوں، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور بھائیوں، اگر آپ نے کسی ہلکی شکل والی خاتون کو قبول کر لیا ہے، اب اسے دھوکہ نہیں دینا۔ زندگی کے مجدار میں اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ چمڑی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دل کی وفا بڑی اہم چیز ہوتی۔ اگر کسی لڑکی کو بدصورت شوہر مل گیا، صبر کرے جنت ملے گی۔ کسی شوہر کو بدصورت عورت مل گئی، صبر کرے جنت ملے گی۔ اور کوئی خوبصورت ملے تو شکر کرے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اگر آپ تھک نہیں گئے تو عرض کروں۔ تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں، آواز تھوڑی سی کم آئی ہے۔ تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ نہیں تھکیں گی، یہ سنیں گی، کیونکہ آج ان کے کام کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بھی ہو رہی ہے، آپ بھی سنیے۔ اور موقع شادی کا ہے، ہمارے اقبال بھائی کی نوازی ہے، نواسا ہوتا ہے کیا جو بھی ہے۔ ہاں، ہمارے اقبال بھائی بہت پرانے ساتھی ہیں، دکھتے نہیں ہیں لیکن نبی یہاں اقبال بھائی کا بھانجا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے شادی کے اندر۔ ایک بہت بڑے فن کے ماہر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نحو میں، نحوی علم نحو میں بہت مہارت دی تھی ان کو۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ علم ملے تو پھر قد بھی اتنا ہی اونچا ہو، علم ملے تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو نحوی تھے بہت بڑے، لیکن تھے بڑے کالے، رنگ بڑا پکا تھا، اور ایک دم گھٹ جس کو پکا کہتے ہیں نا، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بلیک کو آپ اور جو ڈارک بلیک بتانا ہوتا ہے نا جی، نہیں، بہت پکا رنگ، بہت پکا رنگ، گھٹ پکا رنگ، ایک دم پکا۔
इतने काले थे और कद भी छोटा था, और बीवी किस्मत से मिल गई थी बड़ी खूबसूरत। जब भी घर में आते थे सलाम करते थे, कहते थे तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह। जब भी घर में आते थे तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूँ। माहौल अच्छा था, निभ जाती थी। एक दिन थोड़ी सी नाराज हो गई थी बीवी, हमेशा के मामूल की तरह कहने लगे कि तुम भी जन्नती हो हम भी जन्नती। का ये पहाड़े के अलावा कुछ और भी याद किया है? तुम भी जन्नती और हम भी जन्नती है, तुम भी जन्नती, बरसों से सुनते आ रही हूं, बस इसके सिवा भी कुछ जानते हो? अच्छा ये बता दो कि तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में अपनी जन्नत का, मेरी जन्नत का ऐलान करते हो? बताओ तो सही भाई। जब इंसान नाराज होता है तो फिर हिसाब किताब इसी तरह होता है, और माहौल नॉर्मल हो तो फिर हर बात हजम हो जाती है, फिर आप जो चाहे कह दें। अगर माहौल अच्छा हो तो मैं तेरा शाहजहां तो मेरी मुमताज महल भी कह दे तो भी मामला चल जाता है। लेकिन अगर माहौल खराब हो, अजमल सुल्तानपुरी साहब ने कहा ना, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, आ तुझे मैं प्यार की अनमोल निशानी दे दूं। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। अल्लाह ताला अगर वो सलाम हयात हयात तो उनको सलामत रखे। मोहब्बत होनी चाहिए, बीवी मोहब्बत के लिए होती है। तो ये बात भी कहते तो चल जाती कि मैं शाहजहां और आप मुमताज है, चल जाती है। लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं हो ना तो फिर अगर ये भी कह दिया जाए ना कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, तो भी फिर कहा जाता जरा हिसाब दीजिए कि कैसे जन्नती है। वो थे नहवी का बीवी, आप कितनी खूबसूरत है, आप कितनी खूबसूरत है। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं शुक्र करता हूं कि मुझ जैसे काले कलूटे को अल्लाह ने तुम जैसी खूबसूरत बीवी अता की है। तो मैं जो शुक्र करता हूं ना, तो अल्लाह ने शुक्र करने वालों के लिए जन्नत का ऐलान किया है, इसलिए इसे मैं जन्नती हो गया। और तुम जब मुझ पे नजर डालती होगी, इतना काला कलूटा इतनी खूबसूरत औरत को मिल गया, तो तुम सब्र करती होगी, तुम सब्र करती होगी, और सब्र करने वालों के लिए भी अल्लाह ने जन्नत का ऐलान किया है। तो तुम मुझे देख के सब्र करती हो इसलिए तुम्हें जन्नत मिलेगी, और मैं तुम्हें देखकर शुक्र करता हूं इसलिए मुझे भी जन्नत मिलेगी। मुझे शुक्र की बुनियाद पे, तुम्हें सब्र की बुनियाद पे। तो देखो ऐसा भी होता है। तो कभी कोई लालच दे ना कोई बदबख्त कि मेरे पास ये है और ये है और ये, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती सरमाया उसकी हया होती है। और याद रखना, हया अगर चली जाए तो किसी बाजार से आप खरीद करके नहीं ला सकती। और ये भी याद रखना, जो औरतें, तवज्जे, जो औरतें अपने शौहर को धोखा देकर उसका घर उजाड़ कर कहीं अपना घर बसाती है, वो कभी सुकून से नहीं रहती। और जो शौहर अपनी बीवी का घर उजाड़ कर अगर अपना घर बसाता है तो वो भी कभी सुकून से नहीं रहता। वो लोग जो बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ तीन जुमले कहकर औरतों को तलाक दे देते हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, ये सोचकर मैं तो मर्द हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं जो चाहूंगा कहूंगा। किसी ने कहा है ना कि मुझे तलाक तो दे रहे हो, कहरो गुरूर के साथ, गुरूर और कहर के साथ मेरा शबाब की लौटा दो, मेरे महल के साथ अपनी मर्दानगी पे नाश करने वाले अगर माअल्लाह किसी के हुस्न, किसी की जवानी के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब वो जवानी हमेशा नहीं रहेगी। हमने उन बदबख्त लोगों को देखा है जिन्होंने जवानी में बिला उज़्र शरई बीवी को तलाक दिया, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, बल्कि कई औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। जब वो बिस्तर पे लेटते हैं उन्हें सुकून की नींद नहीं आती, वो मौत मांगते हैं, उन्हें मौत नहीं आती, वो दीवारों से सर टकराते हैं, उनको चैन नहीं आता, वो खुदकुशी करने के प्लान बनाते हैं, फिर भी उनको मौत नहीं आती। मैं अपने जवानों से कहता हूं, किसी की जिंदगी को तबाह करने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। सरकार गरीब नवाज आए रसूल ने फरमाया, दिलों को खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं, और दिलों को तोड़ने से बढ़कर गुनाह कोई गुनाह नहीं। जरा सोचो, अगर किसी लड़की को तलाक दे दिया जाता है, एक एक सेकंड उसका मौत से बदतर गुजरता है, हर पल जीती है, हर पल मरती है, हर पल जीती है, हर पल मरती है। तलाक पाने वाली उन बेटियों से पूछो, जब वो किसी शादीशुदा जोड़े को आपस में मोहब्बत की बातें करते देखती है, भाभियों को और दूसरों को, उसके दिल पर कैसा खंजर चलता
है, लेकिन ये सब जुल्म उसने किया होता है जिसने 3 मरतबा तलाक देकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मैं कौम के जवानों से कहता हूं, मर्दान की तलाक देने का नाम नहीं, बल्कि बीवी को निभाने का नाम मर्दानगी है। ना मर्द तलाक दिया करते हैं, मर्द तलाक नहीं देते, बल्कि मर्द तो बीवियों के साथ बुढ़ापे तक विवाह करते हैं, और सिर्फ बुढ़ापे तक नहीं, बल्कि मर्दों की शान ये होती है कि वो दुल्हन बनाकर लाते हैं और जनाजे को कंधे पे उठा के कब्र तक पहुंचाते हैं। ये मर्दों की निशानी है। मर्दों की निशानी ये है कि हमने साथ देने का वादा किया था जिंदगी भर, लेकिन मौत के बाद भी कांधा दे रहे हैं। ये मर्दों की निशानी होती है। नमक ज्यादा होने पे तलाक, मैं के बगैर पूछ कर चली गई तो तलाक, इस पर तलाक, उस पर तलाक, कब तक के खिलवाड़ चलता रहेगा। और सुनो, जिस वक्त तलाक के 3 अल्फाज निकल जाते हैं और किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, अल्लाह तलाक देने वाले का सुकून छीन लेता है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े बड़े घरानों को बिला उज़्र शरीफ तलाक देने की वजह से तबाह होते देखा है, लोगों को पागल होते देखा। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो पागल हो गए हैं तलाक देने के बाद, जिनके कारोबार खत्म हो गए, रोड पे आ गए तलाक देने के बाद। किसी की बद्दुआ अच्छी होती है? जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोग, तलाक को खेल समझते हैं लोग। तलाक खेल नहीं है, तलाक तमाशा नहीं है। किसी को अपनाया इसलिए नहीं था कि उसे छोड़ देंगे, किसी को अपनाया इसलिए था कि जिंदगी भर निभाएंगे। और निभाओ, अगर अल्लाह न करे तकदीर में कुछ ऐसा मसला आ गया है कि वो जबान दराज है, वो सख्त दिल है, समझाओ, मनाओ। और मैं तो ये बात अर्ज करता हूं, वो मर्द ही कैसा यार जो अपनी बीवी को की तरबियत करके उसके जहन को तब्दील न कर सके। क्या बात है। आदमी जानवर को अपनी सोबत में रख करके उसकी भी तरबियत कर लेता है, और मर्द उस बीवी की तरबियत न कर सके तो वो मर्द कैसे। और औरतें भी, मेरा शौहर शराब पीता है, घर जल्दी नहीं आता, इसलिए तलाक चाहिए। मैं कहता हूं, तलाक मांगने से पहले कोशिश करो ना उसको सुधारने की, समझाने की। क्या बात है, उसकी जिंदगी बदल। सही फरमाया। आज जो है 3 लफ्ज तलाक 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 बोल के आज जो है बहुत सारी ऐसी हमारे इस्लाम में ख्वातीन हैं, माँ और बहनें हैं, जिसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नाम जेवर की लालच में, दुनिया की लालच में, हुस्न की लालच में जो है अपने शोहर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर जो दूसरे निकाह कर लेते हैं, अपने शोहर की कदर नहीं करते हैं। नहीं, दोनों को समझना चाहिए, मर्द और औरत को। और जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा और सब्र करने वाली औरत बनकर जब जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला उसी के सदक़े में जो है इस दुनिया के बदले में जो है, दुनिया की सब्र और शुक्र के बदले में अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत अता करेगा। और जितना सब्र और जितना शुक्र यहाँ पे किए उससे कई हजार गुना ज्यादा अल्लाह ताला आखिरत में नवाजेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।